મલિન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાની દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આજના ગુરુવારની શરૂઆત આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના સ્વાગતથી કરીશું. આજનો ભંડારો લીલાબેન વિડોડિયા સુરત તરફથી છે, તો એમના પરિવારને નમ્ર વિનંતી છે કે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગત માટે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થાય. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હા, આ બાજુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે નેપાળ પ્રવાસની તારીખ ડિક્લેર થઈ ચૂકી છે. 26 મે શુક્રવારથી 4 જૂન રવિવાર 2024 9 દિવસનો પ્રવાસ થશે. તો જે પણ તારીખની રાહ જોઈને બેઠેલા હોય, હવે જલ્દીથી તમે નામ નોંધાવી દો, પણ પૂરા પૈસા હવે ભરવા પડશે. નેપાળ પ્રવાસમાં જે પણ ભક્તો ટ્રેન દ્વારા આવવા માગે છે તેમના માટે એક અગત્યની સૂચના છે. ટ્રેન માટેની ટિકિટ આપણે જાન્યુઆરી માસમાં 10 તારીખે પહેલાં સુધીમાં બુક કરાવવાની છે. તો 31મી ડિસેમ્બર 2022 ત્યાં સુધીમાં જેટલા બી ભક્તો ટ્રેન મારફતે આવવા માગે છે તેમણે ટ્રેન ટિકિટના પૈસા ફરજિયાત જમા કરાવી દેવાના છે. 31મી ડિસેમ્બર 2022. જો તારીખ યાદ નહીં રહી તો 31 એમ કરીને યાદ રાખજો. પણ ટ્રેન માટે આવવાવાળા ભક્તો માટે આ ખાસ નોંધ છે. બીજું, આપણું આધ્યાત્મિક શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પખવાડી અને લવાજમ રિન્યુનો સમય આવી ગયો છે. તો જે પણ ભક્તોના લવાજમ રિન્યુનો સમય આવી ગયો હોય જલ્દીથી લવાજમ રિન્યુ કરાવી લો. તમારા સત્સંગ મંડળના વોલેન્ટિયર મિત્રોને પણ આપ તમારું લવાજમ આપી શકો છો. શ્રી શાકંભરી નવરાત્ર 30 ડિસેમ્બર શુક્રવાર 2022થી પ્રારંભ થશે અને 6 જાન્યુઆરી શુક્રવાર 2023ના રોજ પૂર્ણાહુતિ થશે. શ્રી શાકંભરી નવરાત્રિનો મહાભંડારો 5 જાન્યુઆરીના ગુરુવારના દિને રાખ્યો છે. તો બધા ભક્તોને આ ભંડારામાં લાભ લેવા નમ્ર વિનંતી છે. જે પણ ભક્તો ભંડારા નિમિત્તે શાકભાજીનું યોગદાન આપતા હોય તે લોકો 4 જાન્યુઆરી એટલે કે આગલા દિવસે બુધવારે સવારે 7 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી શાકભાજી આપી જવી. શાકંભરી નવરાત્રના ભંડારા નિમિત્તે આર્થિક યોગદાન પણ સ્વીકારવામાં આવી રહ્યું છે. તો એ યોગદાન તમે ઓફિસના કાઉન્ટર પર નોંધાવી શકો છો. આજે નોંધાવું હોય તો આજે અને ત્યારે, એટલે આજથી જ એ નોંધવાનું ચાલુ થઈ ચૂક્યું છે. બીજું, ઉત્તરાયણ આવી રહી છે અને હર વર્ષની જેમ ઉત્તરાયણ નિમિત્તે ડાંગના અંતરિયાળના ગામોમાં નાના બાળકોને પૂજ્યશ્રી તરફથી પતંગ, ફિરકી, દોરા અને તલના લાડુનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. તો આ નિમિત્તે પણ ફંડ ફાળો જે પણ ભક્તો આપવા માગતા હોય એ લોકો ઓફિસના કાઉન્ટર પર પોતાનો ફંડ ફાળો નોંધાવી શકે છે. હવે આજના પાવનદિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. જય લક્ષ્મી નમસ્તેષુ સર્વકાર્ય જયપ્રદે જયં દેહિ શુભં દેહિ
सर्वकामश्च देहि मे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में परम सत्य स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सान्यनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं मां महालक्ष्मी की कृपा से हम हमारे जीवन में सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य को प्राप्त करते हुए जीवन का कल्याण कर सकते हैं और जीवन के सभी संकटों में जिसकी कृपा से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी हम सब पे कृपा करने वाली जगत जननी मां महालक्ष्मी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त YouTube के माध्यम से हर गुरुवार के विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं और नाथ दृष्टि हॉल में उपस्थित रहते हुए हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जयउदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। सत्य साक्षात ईश्वर स्वरूप है। सत्य ही सभी के जीवन के लिए कल्याण स्वरूप है और सत्य ही इस जगत का मूलभूत तत्व स्वरूप है। इसलिए हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए हमें सदा के लिए सत्य को जानना, सत्य को समझना और सत्य को पाने की आवश्यकता है। जितने भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा गया है वो शब्द रूपी ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है। शास्त्र के मंत्र है, वो मंत्रों की शक्ति बार बार चिंतन करने से हमारे भीतर सत्य को जागृत करती है। और इस भारतवर्ष की जो गुरु परंपरा है, वो गुरु परंपरा के द्वारा जितने भी बोधमय शब्द है, ये बोधमय शब्द भी हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतरते हुए हमें सत्य के प्रकाश का ही ज्ञान देते हैं और इतना ही समझाते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। अगर हमने जीवन में सत्य को पा लिया, यथार्थ को पा लिया और सनातन को हमने जान लिया, तो जीवन में
अपने आप हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जन्मना सत्य है, जीवन जीना सत्य है, अंत में यह शरीर को छोड़ना और आत्मा की गति होना, यह मृत्यु सत्य है। तो जन्म, जीवन और मृत्यु के परे जिसे हम पा लेते हैं वो परमेश्वर भी परम सत्य है। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल सत्य ही होता है। और इसलिए महाभारत में भी कहा गया है कि सत्य का चिंतन करना यही ब्रह्म की उपासना है। सत्य सनातन ब्रह्म, सत्य ही यज्ञ है, सत्य यज्ञ परम प्रोक्ता, कि सत्य ही यज्ञ है और सत्य सर्वप्रतिष्ठित, सत्य ही सभी जगह के ऊपर स्थापित हुआ है। इसलिए आप जो भी कुछ चिंतन करते हो सत्य का, वो ब्रह्म की उपासना है। सत्य का जो भी कुछ आचरण करते हो यह सनातन धर्म का पालन है। और प्रति क्षण जहां हम सत्य के साथ जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, यही हमारे जीवन का एक परम तप है। इसीलिए निर्शीर विवेक से जो मानव अपने अंदर सत्य को स्थापित कर देता है, उसका जीवन सत्यमेव जयते बन जाता है। सत्यमेव जयते ये कथन मुंडक उपनिषद का है और हमारी राष्ट्र मुद्रा में भी इसे अंकित किया गया है कि जीवन में हमेशा उसी का विजय होता है जो सत्य का आचरण करता है। जीवन उसी का सफल हो जाता है जो सत्य के साथ जुड़ जाता है। और जीवन में उसे ही मोक्ष मिलता है कि जो सदा सत्य का चिंतन करता है। इसलिए हमने अंतिम गुरुवार पर बात की थी कि सत्य किसे कहा जाए, तो उसकी एक तात्विक व्याख्या थी, जो यथार्थ हो वो सत्य होता है, जो सनातन हो, नवपल्लवित होते रहता है, सनातन जो रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्य होता है। और जो सदैव कल्याणकारी हो वही सत्य होता है। ये तात्विक रूप में हमने सत्य तत्व की चर्चा की थी। लेकिन ज्यादातर सत्य की समझ, सत्य की व्याख्या सत्य को बोलने के एक अंग के रूप में लिया गया है कि सत्यम वदह, सत्य ही बोलो। तो उसका अर्थ क्या हुआ? सत्य वचन का एक अंग है, सत्य बोलने का एक अंग है। सत्य ही सुनो, तो सत्य श्रवण का अंग है। सत्य ही देखो, तो सत्य हमारी दृष्टि का एक अंग है। अगर सत्य देखोगे, सत्य बोलोगे और सत्य सुनोगे, तो जीवन में आचरण भी सत्य का ही होगा। तो हमारे संस्कार का एक अंग यह सत्य है। उस समय पे जो व्याख्या हुई थी वो तात्विक व्याख्या थी। आज की तारीख में जो व्याख्या हो रही है वो मार्मिक व्याख्या है। और ज्यादातर सत्य का मर्म हम यही समझते आए हैं कि बोलना, सत्य बोलना ये सत्य है, सत्य सुनना ये सत्य है, सत्य देखना ये सत्य है। और जीवन में सच का पालन करना यही सत्य है। और इसलिए कहा गया है कि साच को कभी आंच नहीं आती।
जो सत्य बोलता है, सत्य सुनता है, सत्य देखता है और अपने जीवन में सत्य का ही आचरण करता है, उसे जीवन में कभी आंच नहीं आती। तो ये मार्मिक व्याख्या है सत्य की। लेकिन सत्य की मार्मिक व्याख्या तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे जीवन में सत्य की एक सात्विक व्याख्या हो। आप मार्मिक तभी बन सकते हैं जब आपको सत्य के अंदर की सात्विक व्याख्या की खबर हो, सत्य के सात्विक रूप का आपको पता। तात्विक रूप का पता बहुत कम चलता है। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो तात्विक रूप के पता चल जाता है। लेकिन जीवन में मार्मिक कब बना जाता है? जब आप सात्विक बन जाओ तब आप मार्मिक बन जाते हैं। जब महाभारत का समय था तो पांडव और कौरव ये सभी गुरुकुल में अभ्यास करते थे। वहां गुरुकुल में जब अभ्यास होता था तब उन्हें वेद का पाठ भी पढ़ाया जाता था। उस समय पे जब वेद का पाठ पढ़ाया गया तो वहां पांडव और कौरव दोनों को पढ़ाया गया सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान्म प्रमदः, कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और सदा स्वाध्याय करते रहो, उसमें आलस मत करो। ये वेद का एक वाक्य वहां लिखते हुए पढ़ाया गया और ऐसा कहा गया कि जितना जल्दी हो सके उतना यह वाक्य आपको पाठ कर लेना है। यह वाक्य बहुत छोटा सा है लेकिन इसको पाठ कर लेना है। दूसरे दिन सब पाठ करके आएंगे और यहां बताएंगे। दूसरा दिन हुआ, गुरु ने सभी को प्रश्न पूछना चालू किया कि सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान्म प्रमदः, ये सब आपने पाठ कर लिया? हाँ, पाठ हो गया। बोलो। सब एक एक के बाद एक एक बोलने लगे। जिसका जिसका पाठ होने लगा, ज्यादातर सबने पाठ कर लिया। सब बोलने लगे मेरा पाठ हो गया, बोल जाओ, मेरा पाठ हो गया, तुम बोलो, तुम बोलो। जब युधिष्ठिर की बारी आई और जब युधिष्ठिर को पूछा गया कि युधिष्ठिर तुम्हारा पाठ हो गया, तब युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मेरा पाठ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कल करके ले आना। वापस युधिष्ठिर को दूसरे दिन पूछा गया, युधिष्ठिर सबका हो गया, तुम्हारा पाठ हुआ? युधिष्ठिर ने कहा अभी भी मेरा पाठ नहीं हुआ। वापस तीसरे दिन पूछा गया, युधिष्ठिर सबका हो गया, अब तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। तभी भी युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आत्मसात नहीं हुआ, मेरा पाठ नहीं हुआ। चौथे दिन भी यही जवाब रहा, पांचवा दिन आया। गुरुदेव ने वापस पूछा कि युधिष्ठिर आज क्या है? आज तो तुम्हारा पाठ हो गया हो। तब युधिष्ठिर ने कहा आज मेरा पाठ हो गया। युधिष्ठिर ने पूरा मंत्र बोला। तब गुरुदेव ने कहा कि ये जो तुम मंत्र बोलते हो इतना छोटा सा मंत्र है और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब में तुम सबसे ज्यादा बुद्धि वाले हो, फिर भी 5 दिन तक ये मंत्र तुम्हें पाठ क्यों नहीं हुआ? तब युधिष्ठिर ने कहा कि मंत्र तो मुझे पाठ हुआ था, लेकिन मंत्र पाठ हो जाने से होता क्या है? सत्यम वद, मैंने मंत्र तो पाठ कर लिया, शब्दों को मैंने पाठ कर लिया, लेकिन हर रोज मैं झूठ बोल देता था। जो मैं जीवन में जीता था हर रोज, कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल देता था। अगर सत्यम वद यह शब्द ही पाठ करना था तो कब का हो गया था। लेकिन यह पाठ करने के बाद भी मैं हर दिन झूठ बोलता था, मेरा झूठ बोलना बंद नहीं हुआ था। किसी ना किसी के सामने भी मैं झूठ बोल देता था। 5 दिन तक मैंने प्रयास किया कि मैं झूठ नहीं बोलूं और आज मैं झूठ
मैंने नहीं बोला, इसलिए मैंने कहा कि हाँ आज मैंने आत्मसात कर लिया है सत्यम वद। तो आप देखिए कि बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये बोलने का एक अंग हो सकता है। नहीं सुनना एक कानों का अंग हो सकता है। नहीं देखना ये देखने का अंग हो सकता है, आंखों का अंग हो सकता है। झूठ, लेकिन जब तक हम झूठ का आचरण छोड़ नहीं देंगे तब तक कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, गुरु का बोध यह आत्मसात नहीं होगा। यानी पाठ किया किसे कहा जाता है? जब आप सत्य को अपने जीवन में आचरण में लेके आते हैं। और तब गुरुदेव ने कहा कि अब मैं मानता हूं कि केवल और केवल यह मंत्र सिर्फ युधिष्ठिर तुझे आत्मसात हुआ है, बाकी सबको तो पाठ हुआ है। तो यहां देखिए कि सत्य बोलना चाहिए, और एक बार बोलने से सत्य का आचरण हो जाएगा। आज यहां हमने सत्य बोल दिया, बाहर जाके हम झूठ बोल सकते हैं। हम जो व्यापार करते हैं उसमें कितना झूठ बोलते हैं। हम पूरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोलते हैं। व्यापारी हो तो व्यापार में झूठ बोल दे, विद्यार्थी हो तो पढ़ने में झूठ बोले, जिसके हाथ में सत्ता हो वो बार बार लोगों के सामने आके झूठ बोले, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा। सेठ हो तो नौकर के सामने झूठ बोले, नौकर हो तो सेठ के सामने झूठ बोले। जितना भी हमारा व्यवसाय है पूरे जीवन का, कितनी बार हम झूठ बोलते हैं। यानी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं सुनना, झूठ नहीं देखना, ये हम कहते हैं, एक बार करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जब तक जीवन में ये शब्द आत्मसात न हो जाए तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। यानी सत्य का आचरण करना ही धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? सत्य का आचरण करना धर्म का अर्थ है। शांति से रहना धर्म का, सत्य का आचरण है। लोभ नहीं करना सत्य का पालन है। अप्रिय नहीं बोलना, सत्य हो लेकिन अप्रिय नहीं बोलना, यह भी सत्य का एक अंग है। जो भी कुछ हम करें उसमें राग द्वेष से मुक्त हो, यह भी सत्य है। यानी केवल बोलने से, सुनने से और देखने से सत्य की पूर्ति नहीं होती। प्रति क्षण सत्य का आचरण करना, अच्छे का आचरण करना, किसी का भला हो ऐसा आचरण करना, उसे ही सत्य माना गया है। इसलिए ये जो व्याख्या है ये मार्मिक व्याख्या है, लेकिन मार्मिक व्याख्या पे हम आएंगे कब? झूठ नहीं बोलना है, लेकिन क्या झूठ है वो पता तो होना चाहिए। झूठ नहीं सुनना है, जो आप सुनते हो वो झूठ है उसका पता तो होना चाहिए। झूठ नहीं देखना है, जो आप देखते हो वो झूठा है वो तो पता होना चाहिए। यानी सत्य की एक सात्विक व्याख्या है, और सत्य की सात्विक एक ही व्याख्या है, और वो क्या है? सत्य की एक व्याख्या सात्विक ये है कि ऐसा विवेक, हमारे जीवन में ऐसा विवेक जो विवेक से हम असत्य को जान जाए। देखिए ये सात्विक व्याख्या है। ऐसा विवेक जिस विवेक से हम असत्य को जान लें। सत्य को जानना बहुत बाद में है, लेकिन पहले असत्य क्या है उसको तो जानिए। कोई विद्यार्थी हो, वो परीक्षा जब देता है तब अपनी सप्लीमेंट्री में जितने भी प्रश्न है उसके जवाब लिख देता है। अब उसने सही लिखा या झूठ लिखा, उसका परीक्षण कौन करता है? शिक्षक करता है, निरीक्षक करता है। निरीक्षक के सामने जब उत्तर वही जब उसके सामने आए
उसे मार्क देना हो, मार्क किस आधार पर दिए जाते हैं, गुण किस आधार पर दिए जाते हैं, क्या असत्य है और क्या सत्य है उसके ऊपर दिए जाते हैं। यानी जब उत्तर वही जब सामने आए और जब वो उत्तर वही देखना चालू कर दे, तब सबसे पहले उसमें से झूठ पकड़ा जाता है। जो उत्तर लिखा है उसमें झूठ क्या है वो पहले पकड़ के हम चौकड़ी मारते हैं। जो उसने दाखला गिना है उसमें सबसे पहले झूठ पकड़ा जाता है कि उसका जवाब ही गलत है, उसको चौकड़ी मार। सत्य क्या है वो नहीं देखते हैं, झूठ क्या है वो पहले देखा जाता है। और जब झूठ क्या है वो देखने के लिए जब आप जाओ तो 100 में से विद्यार्थी के 70-80 मार्क हम काट लेते हैं। मार्क काटते क्यों हो? आपको मार्क काटने के लिए ही बिठाया है, मार्क देने के लिए नहीं बिठाया है। 100 में से कितने मार्क काटने हैं उसके लिए बिठाया है। और जहां मार्क काटने के लिए, गुण आपको निकालने के लिए जहां बिठाया गया है, वहां असत्य क्या है ये पहले लिखा जाता है। यानी किसी ने 10 मार्क का प्रश्न लिखा है तो पूरा 10 नहीं लिख देते, उसको 5 देते। क्यों? आधा सच्चा है आधा झूठा है। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप सत्य को ढूंढने के लिए जाओ तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको असत्य मिल जाता है। ये असत्य है, ये असत्य है, ये करते 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 उसके मार्क काट दिए जाते हैं। और 35 मार्क से जब स्टूडेंट पास होता है उसमें 30 मार्क कम, 5 मार्क कम हो जाते हैं, तो कृपा के गुण डाले जाते हैं कि चलो जाने दो, ज्यादा सच्चा नहीं लिखा, 30 मार्क का ही लिखा है, 5 मार्क हम ज्यादा दे देते कृपा के। अब आप देखिए इसे क्या कहते हैं? विवेक। कि आपके सामने जो भी कुछ हो उस सत्य को ढूंढने में असत्य का पता चल जाता है, वो पता चलना उसे विवेक कहते हैं। कोई मूर्तिकार हो तो उसके सामने पूरा पत्थर होता है। जब आप किसी भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जाओ तो आपको कहना पड़ता है मुझे विष्णु की मूर्ति बनानी है, मुझे शिव की मूर्ति बनानी है। जब वो मूर्ति बनानी होती है तब मूर्तिकार क्या करता है? पूरे पत्थर को ले लेता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है, एक पत्थर का चुनाव करता है। पत्थर का चुनाव करते समय जब वो अपने उपकरण का उपयोग करता है पत्थर में से मूर्ति बनाने के लिए, तो उस पत्थर में जितने भी असत्य पार्ट है, जितने भी असत्य भाग है, उसे वो काटते जाता है, उसे वो तोड़ देता है। और उसमें से जितना भी सत्य है, जिस पत्थर के भाग की जरूरत है मूर्ति बनने के लिए, उसमें से मूर्ति बनती हुई हमारे सामने आ जाती है। और आप देखिएगा जब मूर्ति बन के आपके सामने आती है तो उसमें से 70-80% भाग तोड़ के निकाल दिया जाता है। 70-80% भाग तोड़ा हुआ होता है, 20% में से मूर्ति बन के सामने आती है। तो ये क्या हुआ? सत्य को खोजने में जो असत्य भाग थे वो सब निकाल दिए, जो जरूरी नहीं थे। जो असत्य भाग थे वो सब निकलते गए, सत्य उसमें से आता गया। जितना सत्य था वो 20% रह गया, बाकी का 80% पत्थर वहां से बिना काम का हो गया, उसे निकाल दिया गया। अब आप देखिए पूरे पत्थर में से 20% में से मूर्ति बनती है, 80% जो भाग होता है उसे समझा जाए ये असत्य, बिन जरूरी है, असत्य है, ऐसा करके वो मूर्तिकार उसका निकाल देता है। यानी पत्थर में से मूर्ति बनती नहीं, पत्थर में मूर्ति होती ही है, उसे निकाला जाता है। बिना उपयोगी पत्थर है उसको तोड़ते हुए उसे निकाला जाता है। तो उसे क्या समझना चाहिए कि सत्य को खोजते खोजते सबसे पहले असत्य क्या है उसका पता हो जाना चाहिए। और सत्य को खोजते खोजते जब सबसे पहले विवेक हमारे अंदर आ जाए असत्य क्या है, तो अपने आप सत्य को आप पकड़ लेते हैं। आपको मैं केला खाने के लिए दे दूं कि ये केला है खा जाओ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? केले के छिलके जितने हैं निकाल देंगे,
और केले के छिलके निकालने के बाद केला खाने लगोगे। उसका अर्थ क्या हो गया कि आपने मुझे केला दिया है, ये पूरा केला नहीं है, केला अंदर है। मैं कहता हूं मैंने पूरा केला दिया है, पूरा केला खा जाओ। आपने कहा मैंने पूरा खाया है, लेकिन पूरा खाया है, उसकी जो छाल है, उसकी जो त्वचा है वो आपने निकाल दी है। क्यों निकाल दी? त्वचा केला नहीं है, केला उसके अंदर है। तो जो झूठ था वो निकाल दिया। एक बंदर को भी आप केला दे दीजिए, बंदर भी झूठ निकाल देता है। और वो केले का छिलका निकालता है, अंदर से केला खाता है और छिलका फेंक देता है। तो प्राणियों में भी ये विवेक होता है कि सत्य को ढूंढते ढूंढते असत्य क्या है उसका पता लग जाए तो पहले असत्य को छोड़ दीजिए, बाद में जो बचता है वो सत्य ही आपके लिए होता है। इसलिए सात्विक व्याख्या है कि सत्य को ढूंढते ढूंढते असत्य का पता चल जाने वाला विवेक हमारे भीतर में पैदा हो जाए तो समझ लीजिए ये सत्य की सात्विक व्याख्या हमें मिल जाए तो बाद में तो सत्य का आचरण ही रहता है, सत्य बोलना ही रहता है, बाद में तो सत्य सुनना ही रहता है, बाद में तो सत्य देखना ही रहता है, और बाद में जो देखते हो, बोलते हो और सुनते हो वही आपका आचरण बन जाता है। तो सत्य की तात्विक व्याख्या यह होती है कि सत्य को ढूंढते ढूंढते असत्य का पता चलना, ये विवेक पैदा होना, ये विवेक रूपी ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, उसे कहते हैं सत्य की सात्विक व्याख्या। जब तक सत्य की सात्विक व्याख्या हमें पता नहीं चलती है तब तक हम लोग भटकते हैं। आप पूरा पिक्चर देखिए, कोई भी सिनेमा हो उसे पूरा देखिए। जब पूरा सिनेमा आप देखते हो और बाद में आपको पूछा जाता है सिनेमा कैसा लगा, अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, तो उसके अंदर जो सत्य है वो हम बोलेंगे कि इसमें ये दिखाया गया है इसलिए हमें अच्छा लगा। बाकी पूरा सिनेमा जितना दिखते हैं उसमें से 5 मिनट का सिनेमा अच्छा होता है। क्यों? उसमें ये जो दिखाया गया वो ज्यादा अच्छा था, बाकी तो सब ठीक है। गाना था, मनोरंजन था, कपड़े जो पहने थे ये मनोरंजन था, लेकिन उसमें से जो निकल के आता था, जो तथ्य निकल के आता था, ये तथ्य जो था वो पसंद आया। यानी सत्य ही पसंद आता है। कोई लड़की लड़का देखने के लिए जाए और उसे लड़का पसंद आ जाए तो क्या पूछा जाए? लड़का देखा कैसा है, पसंद आया? आया। क्या पसंद आया? बस जो भी था अच्छा था, सिंपल था, सादा था, बोलने में अच्छा था, सादा था, पारिवारिक था, अच्छा लगा। उसने क्या पहना है, कैसा दिखता है वो अच्छा नहीं लगता। लड़की को लड़का देखने के लिए उसमें भी वही होता है कि लड़की कैसी दिखती है वो महत्व का नहीं, लेकिन अच्छा वर्तन कर रही थी, अच्छा बोली, परिवार के साथ रहना चाहिए ऐसा बोली, घर संभाल ले ऐसी लगी, सिंपल थी, पसंद आ गई। तो देखिए जो हमें पसंद आ जाता है, जो सच्चा होता है वो आ जाता है। जो सत्य नहीं होता है वो पसंद नहीं आता है। तो ज्यादातर असत्य को ढूंढ लेना, सत्य ढूंढते ढूंढते असत्य का पता चल जाना, उसे कहते हैं सत्य की व्याख्या। और असत्य का पता चलना उसे ही कहा जाता है हमारे जीवन का विवेक। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सत्य के लिए बलिदान देना चाहिए लेकिन किसी के लिए सत्य का बलिदान नहीं होना चाहिए। ये विवेकानंद ने कहा। क्यों कहा? कि जीवन में सत्य के लिए बलिदान, लेकिन किसी के लिए सत्य की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सत्य की अगर बलि चढ़ गई तो बचेगा क्या? तो हमें सत्य के लिए बलिदान देना चाहिए। आपके भीतर में क्रोध है, क्रोध का बलिदान दे दो। क्यों? क्रोध चला जाएगा तो शांति रहेगी। शांति से रहने के लिए क्रोध को छोड़ना चाहिए। जीवन में जो धन आता है
उसे शांति से भोगने के लिए धन के लोभ को छोड़ देना चाहिए, यानी लोभ का बलिदान दे दीजिए। अगर जीवन में जो पैसा आया है उसका शांति से उपभोग करना है तो लोभ को छोड़ना जरूरी है, लोभ की बलि देना जरूरी है। जीवन में शांति से जीना है तो क्रोध की बलि देना जरूरी है। जीवन में सबके साथ प्रेम से जीना है तो अंदर उठे हुए द्वेष की बलि देना जरूरी है। अगर भाईचारे से रहना है तो हमारे अंदर जो बदले का भाव है वो बदले के भाव की बलि देना जरूरी है। लेकिन बदले के लिए भाईचारे की बलि देना ये अच्छा नहीं। हमारा क्रोध स्थापन करने के लिए घर में अशांति फैला देना ये जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पैसे के लोभ के लिए हमारे जीवन में जो भी कुछ आता है उसका उपभोग शांति से करना वो छोड़ने की जरूरत है। तो सत्य के लिए बलिदान होता है, लेकिन किसी भी असत्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए सत्य की बलि देना ये योग्य नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने सिखाया। यानी यहीं से मैं कहना चाहता हूं कि जो असत्य है उसको ढूंढिए। व्यसन क्या है? असत्य है। दारू पीने से जीवन में सुखी हो जाते हैं, ये असत्य है। अगर जीवन में सुखी होना है तो दारू पीना जरूरी है क्या? ये अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दारू पीना जरूरी नहीं है। जीवन में व्यसन से सुखी हुआ जाता है। उसके लिए आप अगर सोचना चालू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असत्य व्यसन है। व्यसन के बिना भी हम सुखी रह सकते हैं। आप जो सिगरेट पीते हो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये पीना जोखमी है। हर एक नशीले पदार्थ के ऊपर उसमें लिखा होता है ये पीना जोखमी है। अगर ये पीने के बाद आपको नुकसान होता है तो जिम्मेवार आप है, कंपनी नहीं है। कोઈને सिगरेट पीने कैंसर થઈ ગયું તો એ કંપની ઉપર કેસ કર્યો કે કોઈ દિવસ કર્યો? વિલ્સ કંપની ઉપર કર્યો, બ્રિસ્ટોલ પર કર્યો, ફોર્સ્ક્વેર પર કર્યો, કેવેન્ડસ પર કર્યો આપણે કોઈ કેસ? તારી સિગરેટ પીવાથી ડોક્ટરને પૂછો, ડોક્ટર કહે છે કે આ સિગરેટ બહુ પીતા હતા, લંગ્સ કેન્સર થયું, તમે કેસ કર્યો? કોઈ દિવસ થયો છે કેસ सिगरेट कंपनी पर? કેમ? कंपनी કહે છે, कंपनी कहती है कि मैंने बॉक्स के ऊपर लिखा है ये हानिकारी है। तो सत्य तो हमने लिख दिया है, लेकिन आपने असत्य को पकड़ लिया है। कंपनी खुद बेचती है और बेचने वाली कंपनी खुद कहती है क्या सत्य है क्या सत्य हम लिखते हैं। हमारा तो काम धंधा है, आपसे 10 रुपया कमाना हमारा काम है। लेकिन जिस असत्य को आपने आपके अंदर धुएं के द्वारा उतार दिया है और जिसके द्वारा ये हुआ है उस कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? हमने पहले से लिखा है। तो देखिए, अगर सत्य की खोज करते तो बॉक्स पे लिखा हुआ पहले मिल जाता था, और वो पहले अगर मिल जाता था तो असत्य छूट जाता था, लेकिन नहीं हो पाया। हमने हमारे भीतर में जो संस्कार थे उसकी बलि दी, सत्य की बलि दे दी। एक असत्य के लिए सत्य की बलि दे दी। अगर सत्य के लिए बलि देना होता तो सिगरेट हम छोड़ देते। तंबाकू का पैकेट देखिए, तंबाकू का, उसके ऊपर लिखा भी होता है हानिकारी है, लेकिन उसके ऊपर कैसा कैंसर होता है उसका फोटो भी होता है उसको। अगर आप खाते होते तो आपको पता, जो खाया है उसने पता है, जिसने नहीं खाया और लाके दिया है उसको भी पता होता है। जो पैकेट देखता है ना उसमें दिखता है। घણા पे આપણે મંગાઈ લે, જાન બેટા લઈ આવ નહીં તો પેલો છોકરો લેવા જાય ને એના પર હોય। जो आपको लाके देता है उसको भी उसके ऊपर दिखता है, कैंसर का फोटो होता है। गले आपके गालों का जो कैंसर है उसका फोटो होता है उसके ऊपर। जो बेचने वाला होता है वो भी देखता है फोटो। अब आप सोचिए, और फाड़ के जब हम वो पैकेट नीचे फेंक देते हैं तो अगर हम कहीं चलते हैं और हमारे सामने वो पैकेट आ गया, देखते हैं तंबाकू ने, वो देख फोटो देख के बोलते हैं तो तंबाकू का पैकेट, सब लोग देखते हैं।
कैंसर कैसा होता है वो भी दिखाया जाता है। તમે જોજો, ભજ્યું બનાવેલો ને, ભજ્યું કેવું તળેલું હોય, પેલું કાંદાનું ભજ્યું નહીં હોય, કાંદાનું, એ કાંદાનું ભજ્યું તળેલું હોય તેવું પિક્ચર દેખાતું હોય. તમે પિક્ચર જો તમને જોવાનું નહીં ગમે, પણ એ તમારે અંદર થાય છે આ વસ્તુ. जिस तरह भज्जू बनावीने આપણે ભજ્યું તળેલું હોય ને એવું જ લાગે. तो आप देखिए कि वो खाने से कैंसर हुआ. कभी आपने तंबाकू की कंपनी के ऊपर केस किया, पंढरपुरी हो या मिराज हो या कोई भी हो, केस किया आपने? कंपनी तो आज भी चालू है. कंपनियां क्या कहती है, हम तो बेचते हैं, उस पर बताया हुआ है, फिर भी विमल हो, गुटखा हो, जो भी हो, लेकिन कहीं भी कंपनी के ऊपर केस नहीं डाला जाता, क्योंकि कंपनी जो सत्य हो पहले दिखा देती है. लेकिन प्रॉब्लम एक हो गया है कि हमने सत्य को देखा नहीं, हमने सत्य को पढ़ा नहीं, और हमारे आजू बाजू में इतने केस बनते हैं, इतने केस बनते हैं, फिर भी हमने उससे सीखा नहीं, सत्य का आचरण नहीं किया. सत्य को अगर ढूंढने के लिए जाते तो ये पैकेट कप का छूट जाता था. सत्य को ढूंढने के लिए जाते तो डिब्बी कप की छूटती थी. सत्य को ढूंढने के लिए जाते तो सिगरेट कप की छूट जाती थी. और सत्य को ढूंढने के लिए जाते तो दारू की बोतल छूट जाती थी. दारू की बोतल हमेशा हमेशा के लिए छूटती थी, लेकिन सत्य को ढूंढने नहीं गए, असत्य को पा लिया, और हमारे जो संस्कार थे उसकी बलि हमने दी. तो जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष अपनी 30-32 साल की उम्र में पूरे विश्व को जागृति देके गए, अपना ज्ञान सबको प्रसाद के रूप में देके गए, अपने जीवन से जिन्होंने लोगों को अनुभव दिया, जिनका जीवन एक ग्रंथ के समान है, ऐसे विवेकानंद जैसे युग पुरुष के देश में युवानों की हालत आप देखिए कि युवान अपनी युवानी को युवानी होते हुए समाप्त कर रहे हैं, असत्य का आचरण कर रहे हैं. असत्य का झूठ बोलना यही असत्य का आचरण नहीं. असत्य का आचरण तो वो भी है जिससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए. एक सोच लीजिए, ज्यादा दारू पीने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से परिवार का एक आदमी मर जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके माँ बाप जो बूढ़े होते हैं वो निराधार हो जाते हैं, समाज में से एक युवान आदमी चला जाता है, समाज को क्षति होती है, परिवार को क्षति होती है, कुटुंब को क्षति होती है. सोचिए आप कि आपके एक आदमी के मर जाने से कितने लोगों का उसको नुकसान होता है, कितने लोगों का जीवन भय के अंदर चला जाता है. आप सोचिए. और आपके एक चले जाने से आप देख सकते हैं कि कितने लोग जीवन में दुखी हो जाते हैं. आपने शादी की, परिवार पैदा किया, कुटुंब बनाया, क्यों बनाया? मरने के लिए बनाया. अगर आपने ये सब मरने के लिए किया था तो अकेले ही मर जाना था, इतने लोगों को साथ में लिया क्यों आपने? इतना सोचिएगा. जो ये सब खाते हैं उसके लिए मैं कहता हूं सोचिए. जब हम खाते हैं तब यही सोचते हैं कि दूसरों को होता होगा, हमें क्या होगा. ऐसा नहीं है. हमें क्या होगा, अगर आपकी तकदीर अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जरा सी लापरवाही की और अगर हो गया तो जीवन में कितनों को क्षति हो जाएगी. ये सब जमावड़ा ही क्यों किया? अगर मरना ही था तो अकेले रह के मर जाते, लेकिन ये सबको इकट्ठा क्यों किया? बच्चे क्यों पैदा किए? अनाथ होने के लिए. शादी क्यों की? विधवा पत्नी को विधवा करने के लिए. माँ बाप के साथ रहते माँ बाप निराधार हो गए, पूरा परिवार, ऐसी स्थिति आ गई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और पूरा परिवार, उसकी हालत गरीबी में चली गई. तो आप सोचिए कि एक असत्य का आचरण करने से
हम अकेले नहीं मरते, पूरे परिवार को हम मार देते। तो जितने भी युवान, स्वामी विवेकानंद का ये देश है, वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा युवान हमारे भारत में है। और जहां इतनी युवानी है वहां हमारे देश को तो आगे बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। वहां असत्य के आचरण से हमारा युवा वर्ग युवानी में ही मर रहा है। यानी असत्य बोलना ये झूठ नहीं है, ये अकेला इतना ही झूठ नहीं, देखना ही झूठ नहीं, वर्ताव करना भी झूठ है। और ऐसा जब आप व्यसन खाते हो ये भी असत्य है। क्यों? ये करने से जीवन में अशुभ होता है, किसी का कल्याण नहीं होता, आपका जीवन समाप्त हो जाता है। सत्य जीवन देता है, सत्य जीवन लेता नहीं है। तो जब आप सत्य को ढूंढने के लिए जाओ और ढूंढते ढूंढते असत्य क्या है ये पता चलने लग जाए, उसे कहते हैं विवेक, निर्शिर विवेक। और ऐसा निर्शिर विवेक जो हो उसे ही कहा जाता है सत्य की सात्विक व्याख्या। और सत्य की सात्विक व्याख्या जब हमें पता चल जाए तब मेरा ऐसा मानना है असत्य सामने आ जाए, सत्य हाथ के साथ रह जाता है। यानी सत्य को सिर्फ बोलने के ऊपर न देखे, सुनने के ऊपर और देखने के ऊपर न देखे। सत्य को अगर देखना है तो प्रत्येक वस्तु में देखे, उसमें अगर देखना चालू कर दिया तो असत्य आपके सामने आ जाएगा। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि अभी 31 आ रही है, 31 का हमने विरोध किया था, क्रोध के साथ विरोध किया था। क्यों किया था? तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 31 मनाते क्यों है? देखिए 31 किसी भी धर्म का प्रोग्राम नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना क्रिश्चियन का है। सबके अपने अपने नए साल अलग अलग समय पे आते हैं। 31 किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं है। 31 केवल और केवल व्यसन और विकार उसको मनाने का एक दुष्ट त्योहार है। 31 को किसी भी धर्म से न जोड़ा जाए। जिस प्रकार आप देखिए कि हमने रामायण का ग्रंथ पढ़ा, रामायण के ग्रंथ में एक रावण बताया गया था। और रावण किसका पुतला था? दुराचार का। रावण विकारों का पुतला था, रावण पापाचार का पुतला था, रावण अकल्याण का प्रतीक था, और रावण व्यभिचार का पुतला था। हमारे रामायण के ग्रंथ में रावण को जिस प्रकार दिखाया गया, उसी रावण को हम विजयादशमी के दिन पुतले के रूप में जला देते हैं। क्यों जलाते हैं? यह विकारों का पुतला था। ठीक उसी प्रकार अगर कलयुग में कहीं रावण को देखना हो तो वो रावण को देखने के लिए कोई ग्रंथ में देखने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर में, पाश्चात्य कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर में आपको रावण दिखेगा। और अंग्रेजी कैलेंडर में जो रावण दिखता है वो 31 दिसंबर का रावण है। युवान वर्ग, युवतियां नशे की हालत में पार्टियां करते हैं, जुआ खेलते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं और उसमें अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, अपने परिवार को क्षति करते हैं, पूरे समाज को हानि करते हैं। जहां ये लत लग जाए और 31 के दिन उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, पार्टियों के रूप में प्रोत्साहन मिलता है, नए साल मनाने के रूप में प्रोत्साहन मिलता है। और जहां यह प्रोत्साहन हो तो यहां समझ जाइए कि हमारी युवानी नष्ट होने जा रही है, हमारी संस्कृति नष्ट होने जा रही है, हमारे संस्कार असत्य के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। तो 31 दिसंबर जो है
ये कैलेंडर में बताया गया हुआ एक रावण है। जैसे विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, 31 के दिन 31 का पुतला जलना चाहिए, व्यसन के पुतले को जला देना चाहिए। और ऐसा क्रोध और विरोध प्रत्येक युवान, प्रत्येक धर्म के युवान में होना चाहिए। अगर समाज, राष्ट्र, परिवार को मजबूत करना है तो 31 दिसंबर का विरोध व्यसन को जला के कर देना चाहिए। अगर जब करेंगे नहीं तो इतना समझ लीजिए कि ऐसा दूषण है जो हमारे पूरे परिवार को, जीवन को और राष्ट्र को नष्ट कर देगा, पूरे विश्व को नष्ट कर देगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ना तो हमें जाति की बात करनी है, ना तो हमें धर्म की बात करनी है। हमें तो सिर्फ कर्तव्य की बात करनी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वतनी हैं। कर्तव्य, कर्म, धर्म, अधर्म, असत्य, सत्य का ज्ञान हमारे ग्रंथों ने हमें दिया है। इसलिए 31 का विरोध करना है और जीवन में सत्य की राह को हमें पकड़ना है। इतना ध्यान में रखिए और इस असत्य का विरोध करिए। આ સત્યનો વિરોધ કરવા હું દર વર્ષે કહું છું। તમને એમ લાગતું હશે કે દાદાને કેમ આજ દેખાય, એટલા માટે જ દેખાય છે કે આ વિકારોને કારણે કેટલા જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે, એટલે એનો વિરોધ કરો। કોઈ પણ હોય 31 ઉજવવાની નહીં। 31ના દિવસે પાર્ટીઓ બંધ કરી નાખો। 31ના દિવસે તમે ઘરે બેસો, પરિવાર સાથે બેસો, જમો, ચર્ચા કરો અને કંઈક પરિવાર સાથે રહીને નવું કરો। પણ 31ના દિવસે આ પાર્ટીઓ બંધ કરો અને યુવા વર્ગને તો ખાસ કહું છું, બંધ કરો। નહીં તો એટલું યાદ રાખજો, બધું ધીમે ધીમે સમાપ્ત થશે। 31 का क्रोध से विरोध व्यसनों का दहन करते हुए इस बार करना चाहिए। और इसीलिए हमारी दादा के सेना के जितने भी सैनिक हैं, इस बार हम सब ने मिलकर तय किया है कि हम सब, हमारे साथ यहाँ दक्षिण गुजरात में 5 जिले हैं, ये 5 जिले में जितने भी कलेक्टर हैं उनको हम आवेदन पत्र देंगे कि इसके ऊपर प्रतिबंध लाए। दारू के ऊपर प्रतिबंध हो, सबके ऊपर प्रतिबंध हो। 31 दिसंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा शक्ति बरती जाए और उसके विरोध में हम हर जगह पे, चौक के ऊपर, चौराहे के ऊपर, बाजार में 31 दिसंबर व्यसन का दहन करेंगे, उसके पुतले जलाएंगे। दादा की सेना के जितने भी सैनिक हैं, इस बार क्रोध से विरोध, व्यसन का दहन करते हुए और जो भी तंत्र है उसको अवगत करते हुए, आवेदन पत्र देते हुए हम इसका क्रोध और विरोध करेंगे। और दादा की सेना मैंने बनाई ही इसीलिए है कि धर्म का पालन हो और अधर्म का बहिष्कार हो। तो जितने भी सैनिक हैं, एक साथ एकजुट होके यह कार्यक्रम हर जगह हम करेंगे। और किसी को करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हर जगह इस बार ये कार्यक्रम होगा। हाँ, अगर कोरोना की वजह से कुछ प्रोटोकॉल आ गया तो 2 नंबर की बात है, लेकिन 1 नंबर की बात तो यह है कि इस बार आवेदन पत्र देते हुए, व्यसनों का दहन करते हुए, 31 का पुतला जला के हमारा जितना भी युवा वर्ग है दादा की सेना का, ये क्रोध से विरोध करेगा। और जितने भी मेंबर है वो सब जुड़ जाए और सब युवान है दुनिया को दिखाए कि कोई धर्म, कोई संप्रदाय ये विरोध करे न करे। धृतिमान नाथ संप्रदाय नवनाथ धाम ये विरोध करता है। तो असत्य, सत्य को ढूंढते ढूंढते असत्य हाथ में लग जाता है, और जब असत्य साथ में लग जाता है उसका अर्थ, कहने का अर्थ है ये विवेक है। विवेक दोनों को जुदा कर देता है और निर्शीर विवेक असत्य को फेंक देता है और सत्य को साथ में ले लेता है। ये निर्शीर विवेक है। महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह इसीलिए किया था कि स्वतंत्रता अगर आत्मा का गुण है
तो स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का गुण है। अगर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र है तो जिस राष्ट्र में वो रहते हैं वो राष्ट्र भी स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह कर लिया। भगत सिंह ने यही स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को फांसी पे चढ़ा दिया। स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष अपना ज्ञान देते हुए, विवेक और निर्शील विवेक को समझाते हुए, अधर्म और धर्म क्या है उसकी परख करवाते हुए अपने जीवन का उन्होंने निर्वाण कर दिया। तो क्यों ना हम लोग भी सत्य की व्याख्या को समझे, विवेक के साथ समझे और जो कुछ गलत है उसको छोड़ दे। गलत बोलना ही नहीं, गलत खाना भी नहीं चाहिए, गलत पीना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि गलत देखना भी नहीं चाहिए, गलत सुनना भी नहीं चाहिए। कई ने गलत सुना तो क्या हुआ? राम को वनवास हो गया, अयोध्या बिखर गई। जब कई ने वनवास राम को दे दिया, जो गलत सुना, अगर कई ने सत्य समझा होता तो राम नाम का सत्य सबसे पहले कई जान जाती थी। लेकिन कई ने असत्य सुना, असत्य का आचरण किया। राम वनवास चले गए और अयोध्या राम के बिना अधूरी रह गई। देखिए कितनों का नुकसान हो गया। दुर्योधन सत्य और असत्य, धर्म अधर्म में परख ही नहीं कर पाया। ऐसी संगत में वो रह गया कि जहां असत्य सत्य क्या है, अधर्म धर्म क्या है, वो समझ नहीं पाया। और जब वो समझ नहीं पाया, इसलिए जब उसको पूछा गया तो दुर्योधन ने तब कहा है, नाजामि धर्म नच में प्रवृत्ति, नाजामि धर्म नच में निवृत्ति, कि मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है समझता हूं, लेकिन उसके उस हिसाब से मैं आचरण नहीं कर पा रहा। धर्म और अधर्म की समझ है, लेकिन उसका आचरण करना मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। ये दुर्योधन ने कहा। यानी असत्य और सत्य जानने के बाद भी अपने आचरण में वो ला नहीं सका, तो विश्व युद्ध हो गया। ये धर्म युद्ध, ये विश्व युद्ध था। कितने लोग मरे हैं उसमें। तो यहां आप देखिए कि उसमें एक ही था निर्शील विवेक को जानने वाला, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण, जिसने अपनी पूरी गीता में निर्शील विवेक बताया है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पापाचार क्या है, सत्याचार क्या है, नाशवंत क्या है, शाश्वत क्या है, अमरता क्या है और पामरता क्या है, शर क्या है और अक्षर क्या है। निर्शील विवेक करके जिसने दिखाया, वो कृष्ण ही जानते थे कि सत्य क्या है। जिसने कृष्ण को पकड़ा वो धर्म विजेता बने, जिसने कृष्ण का साथ छोड़ दिया वो अधर्म के राक्षस बन गए। तो यहां से ही हमें समझना है कि निर्शील विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक गांव में गए, वहां सबके साथ बैठे थे, प्रवचन होता था। एक साधु आया, वो साधु आया, गुरु नानक जी का प्रवचन सुना। गुरु नानक जी का प्रवचन सुनने के बाद सब चले गए। तब वो साधु ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपका प्रवचन सुना है और कुछ खोजता खोजता आपके पास आया। गुरु नानक जी ने कहा, कहो क्या खोजते खोजते आए हो? आप तो साधु हो। साधु सत्य को खोजता नहीं है, साधु सत्य के साथ जीता है। और आप कहते हो कि मैं कुछ खोजता खोजता आया हूं। तो कहा कि देखिए, मैंने सत्य की खोज करने के लिए घर बार छोड़ दिया। सत्य की खोज करने के लिए मैंने पुत्र पत्नी परिवार छोड़ दिया। और सत्य को खोजते खोजते जब मैं निकला तो मुझे ऐसा पता चला कि सत्य खोजने से मिलेगा, छोड़ने से मिलेगा। और वही खोजते खोजते मैं सत्य को ढूंढ रहा हूं कि कहीं मुझे सत्य मिल जाए। और ये सत्य को खोजने के
जीवन जीना भी जरूरी है, भिक्षा मांगना भी जरूरी है। अगर शरीर रहेगा तो मैं सत्य को खोजूंगा। तो मैंने एक नियम बनाया उसके आचरण के लिए, क्या कि गांव में ऐसे ही व्यक्ति से भिक्षा लेनी चाहिए जो सत्य बोलता हो। जो असत्य बोलता हो उसका खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सत्य को खोजता हूं। जब तक सत्य मिले नहीं तब तक तो जिंदा रहना पड़ेगा। तो जब तक भी जिंदा रहना है तो ऐसे ही व्यक्ति के हाथ का खाना चाहिए जो सत्य बोलता हो, सत्य देखता हो, सत्य सुनता हो, सत्य का आचरण करता हो। हाँ तो ठीक है, आप बराबर जा रहे हैं, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? गुरु नानक ने कहा। उसने कहा, महाराज मैं आपकी इतना ही मदद चाहता हूं कि मैंने सुना है कि कई महीनों से आप यहां इस गांव में रहते हैं। हाँ, तो आपको तो पता चल गया होगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आप मुझे जरा बता दीजिए कि जो सच्चा है वो मुझे बता दीजिए, तो उसके घर से भिक्षा मांग के खा लूंगा। और कौन झूठा है वो भी बता लीजिए, तो उसके यहां मैं जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि आप तो महीने से रहते हैं ना, आपको पता चल गया होगा कौन झूठा कौन सच्चा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आपसे इतनी मदद चाहता हूं। तब गुरु नानक जी ने कहा कि ये जो तुम मदद चाहते हो, ऐसी मदद मैं करता नहीं। क्यों? क्योंकि कौन सच्चा है कौन झूठा है वो कहने वाले, उसको पकड़ने वाले हम कोई नहीं। हम तो सत्य को आत्मसात करने वाले। इसलिए मैंने जो आत्मसात किया है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। इससे तुम पकड़ लेना कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ठीक है, बोलिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक असत्य का आचरण किया है। क्या? घर को छोड़ दिया। सत्य को पाने के लिए घर को छोड़ना जरूरी था क्या? क्योंकि आपने घर को छोड़ दिया, अब आप दर दर भटक रहे हो। जंगल में जाओगे वहां झोपड़ी बना दोगे, कहीं जाओगे वहां थोड़ा मकान बना दोगे। क्यों मकान बनाएंगे? मौसम से बचने के लिए, रहने के लिए। कहीं ना कहीं आपको झोपड़ी बनानी पड़ेगी एक समय। अभी वो झोपड़ी आपने अगर बना ली तो उस झोपड़ी में आपको रहना पड़ेगा। जहां आप रहोगे उस असत्य की माया लग जाएगी। आज छोटी झोपड़ी बनी है, कल बारिश आएगी तो उसमें छत बनाओगे, वो छत गिरने लगेगी तो उसमें आप मकान बना दोगे। तो सत्य को ढूंढने निकले हो, आपकी माया इस झोपड़ी में लग जाएगी। घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, विकार छोड़ने की जरूरत थी। अगर विकार छोड़ देते तो घर में रहते सत्य मिल सकता था। क्योंकि आप अभी जहां जाओगे वहां झोपड़ी बनाओगे, झोपड़ी बनाने के बाद वही सब वहां हो जाएगा। अगर वही सब वहां हो जाएगा, उसी झोपड़ी में विकार लग जाएंगे, तो जो छोड़ा है उसका छोड़ने का फायदा क्या है? दूसरी बात, परिवार, पत्नी, समाज को क्यों छोड़ा? छोड़ने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जिसको आपने छोड़ा है, क्यों छोड़ा? ये सब माया है। ठीक है, तो आप जहां जाओगे सत्य को खोजोगे, कोई गुरु आपको मिल जाएंगे तो आप उसके सबसे पहले शिष्य बन जाओगे। शिष्य बनोगे तो आपके साथ और कई शिष्य होंगे। तो जो आपके साथ शिष्य होंगे वो आपको भला कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपके साथ प्रेम करेंगे और प्रेम करेंगे। कोई क्रोध करेगा तो उसमें भी आपको द्वेष आएगा, क्रोध आएगा, किसी के साथ लगाव हो जाएगा। जो घर पे छोड़ के आए ये तो यहां भी होएगा। धीरे 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 आप गुरु बन जाओगे। शिष्य जो है वो गुरु बन जाएगा। गुरु बनने के बाद काफी शिष्य आपके पास आ जाएंगे। तो कोई शिष्य आपको ज्यादा पसंद आएगा, कोई नहीं पसंद आएगा। किसी में अच्छा दिखेगा, किसी में बुरा दिखेगा। किसी को आप संभालोगे, किसी को आप निकालोगे। तो घर पे जो माया थी ये तो शिष्यों में भी लगेगी। संसार तो आपका यहां भी बन जाएगा। तो जो यहां वहां होना है वो यहां भी हो जाएगा। उसको क्यों छोड़ा? वहीं रहना था और विकार को छोड़ देना था। अगर वहीं रह के माया और विकार को छोड़ते तो यहां तक आने की जरूरत नहीं। तो ये जो कुछ आपने छोड़ा है। दूसरी बात, कि आप कहते हो मैं सत्य को खोजता हूं। सत्य को आप कब खोज पाओगे? सत्य को सोचोगे तब खोजोगे। ब्रह्म का चिंतन करोगे, जो राम नाम सत्य है उसका जाप करोगे, तब आप सत्य को खोजोगे। लेकिन जहां जहां आप ढूंढते हो वहां वही देखते रहते हो। ये असत्य वाला है, ये सत्य है, ये झूठा है, ये सच्चा है।
पूरे दिन आप कौन झूठा कौन सच्चा उसको ढूंढने में पड़ जाओगे। और सुबह से उठने के बाद कहाँ रोटी खानी है कहाँ नहीं खानी है वही उसमें आपका मन लगा रहेगा, तो नाम कैसे लोगे। सुबह से उठने के बाद दोपहर का खाने की चिंता, ये सच्चा है इसके घर जाऊं, ये झूठा है इसके घर में न जाऊं। रात को सोने समय भी रोटी की चिंता, तो पूरे दिन आप लोगों में ढूंढते ही रहोगे कौन सच्चा कौन झूठा, और पूरे दिन रोटी 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 चलती रहेगी, तो राम के नाम का चिंतन कब करोगे। तो आप जिस ट्रैक के ऊपर जा रहे हो, जो सब कुछ छोड़ के आए हो, जो सच्चा है उसको छोड़ दिया और झूठा है उसको पकड़ लिया। तो बोले महाराज क्या करूं, कुछ नहीं करना है, तो क्या करूं आप मुझे बताओ, जो आपने किया मैं करूंगा। तब गुरु नानक जी ने कहा देखो मैंने व्यापार किया, मैंने नौकरी की, मैं साधु बना, मैंने परिवार, मेरा परिवार था, परिवार के साथ रहा, आज भी हूं, हर जगह पे ढूंढता हूं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। तो क्या किया आपने, तो मैंने जप किया, जप करो, जप करो, नाम रटो, और जो भी कुछ आपके पास है वो सबको बांटो। जप करो, नाम रटो, और जो कुछ आपके पास है उसको बांटो, और बांटते बांटते जीवन में सत्य को पालो। ये मेरा वाक्य है, इसे आपने अगर पा लिया तो समझ लेना सत्य आपके भीतर में मिलेगा, दूसरों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस इतना ही करो, जपो, राम को रटो, जो पाया है उसे बांटो। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, जो पाया है उसे बांटते चलो। जपो रटो और बांटो, ये अगर हो गया यही सत्य का आचरण है। और अगर ये कर लिया, स्वयमेव सर्वस्व प्रतिष्ठति, सत्य सर्व प्रतिष्ठति, सत्य हर जगह पे फैला हुआ है। सिर्फ असत्य छोड़ हाथ में आ जाए उसे छोड़ना है, और जो बचे उसको पा लेना, वो सत्य है। तो गुरु नानक जी ने अपने निर्शीर विवेक से, जिसने गलत दिशा पकड़ ली थी उसको सही दिशा पे ला लिया, उसको अपने घर वापस भेज दिया। तो मेरा कहना भी आप सबको यही है, असत्य के साथ भटक रहे हैं, असत्य पता चल जाने के बाद सत्य को पा लिया जाए, यही विवेक होता है। और यही विवेक हर गुरुवार में गुरु दरबार में प्रवचनों के द्वारा सब तक पहुंचता है। और अगर विवेक यहां से बांटा गया है, तभी तो 60-60 साल से 3-3 पीढ़ी से आप सब यहां आते हो। क्यों आते हो? प्रवचन में क्या मिलता है? प्रवचन में विवेक मिलता है, और यही विवेक के साथ जीना, उसे कहा जाता है सत्य का आचरण। यानी जीवन में सत्य से रहिए, सत्य का आचरण करें, और वही सत्य को जपो, सतनाम जपो, सतराम रटो, और जो सत्य पाया है उसे बांटो। इतना करोगे तो मां लक्ष्मी की कृपा, निर्शीर विवेक होगी, और वही सत्य मूल स्वरूप परमात्मा का है। सत्यमेव जयते, हमारे जीवन में सत्य का विजय होगा। 31 का जो कैंपेन, ये भी सत्यमेव जयते है। असत्य है उसको जला डालिए, और जो ज्ञान हुआ है सत्य का, उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। सत्यमेव जयते। तो हम सब गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे जीवन में असत्य का आचरण हुआ है, तो हमें असत्य क्या है वो पता चले, हमारे भीतर में निर्शीर विवेक जागृत हो जाए, और निर्शीर विवेक की जागृति के बाद हम राम को जपेंगे, राम को रटेंगे, और जो आराम हमने जीवन में राम के द्वारा पाया है, उस आराम को ही हम बांटेंगे। हमारे जीवन में सत्य को हम पाए और असत्य को छोड़े, ऐसा निर्शीर विवेक हमारे जीवन में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना मां भगवती के चरणों में करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च
अडवङ्गकानीफमच्छेन्द्रराज्य चौरङ्गी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा भूम्यां बभुवननाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ सानेनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો લીલાબેન વી ઢોળિયા વ્યારા એમના પરિવાર તરફથી છે. એમના સુપુત્રના લગ્ન નિમિત્તે બાજરીના રોટલા, રીંગણનું ભરતું, મસાલે ભાત, મસાલા છાશ, સિંગદાણાની ચીકી. તો લીલાબેનના પરિવાર તરફથી આજનો ભંડારો છે. એમના માટે પ્રાર્થના કરું કે જે સત્યના આચરણ પર ચાલે છે અને જે પ્રમાણે વર્ષોથી ગુરુભક્તિ કરે છે કરતા રહે, એમનો પરિવાર સુખી રહે અને આનંદમય રહે. ત્યાર પછી બીજી વાત કે 30 ડિસેમ્બર એટલે કે હવે આવે તે શુક્રવારે નવરાત્રિની શરૂઆત થશે. 5 જાન્યુઆરીએ ગુરુવારે મહાભંડારો શાકંભરી નવરાત્રિનો. 4 જાન્યુઆરી બુધવારે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 9 વાગ્યા સુધીમાં તમારે જે પણ શાકભાજી આપવી હોય તે અહીંયા આપી જાઓ અને આર્થિક યોગદાન હોય તો ત્યાં નોંધાવજો. તો 5 તારીખના ગુરુવારના ભંડારામાં આ બધી જ શાકભાજીનો ઉપયોગ પ્રસાદ તરીકે થશે. અને 6 તારીખે પૂર્ણાહુતિ થાય છે. દરેક જણાએ પોતાના ઘરે એની પૂર્ણાહુતિ કરવી. પણ 5 જાન્યુઆરીનો ભંડારો એ સૌથી મોટો ભંડારો છે. એ દરેક જણાએ નોંધ લેવી અને એ પ્રમાણે દરેક જણાએ ગુરુવારે ભંડારાનો પ્રસાદ લેવા માટે અહીંયા પધારવાનું. સવારના આવશે તેને પણ મળશે, પણ સાંજે પ્રવચન સાથેનો ગુરુવાર છે માટે પ્રવચન અને પ્રસાદ એને પ્રાપ્ત થશે. બીજું સંક્રાંત આવે છે તો એનો ફંડ ફાળો જેણે પણ આપવો હોય તો આપી શકે. દર વર્ષે સંક્રાંત ડાંગના વિસ્તારોમાં 2-3-4 હજાર જેટલા પતંગો, ફિરકી આપણે બધું મોકલીએ છીએ છોકરાઓને આનંદ માટે. તો એમાં પણ જેણે યોગદાન આપવું હોય તો ત્યાં આપી શકો છો. ત્યાર પછી નેપાળ પ્રવાસ 26 મે શુક્રવારે મળસ્કેથી આ પ્રવાસ ચાલુ થશે અને 4 જૂન રવિવારે તમે બધા મળસ્કે તમારા સ્ટેશન ઉપર તમે આવી જશો અને ઘરે પહોંચી જશો. તો 26થી લઈને 4 જૂન સુધીનો એટલે 9-10 દિવસનો આ પ્રવાસ છે અને મોટો પ્રવાસ છે. વિદેશ યાત્રા છે અને ગોરખનાથજીના દર્શન કરીને અને પશુપતિનાથજીના દર્શન કરીને આવા ભવિષ્યના આપણા વિદેશના પ્રવાસો પણ આપણે કરશું. માટે 26 મેથી 4 જૂનનો આ પ્રોગ્રામ છે. દરેક જણા ધ્યાન પર લે. ઘણા કહેતા હતા એકવાર તારીખ બહાર પડે તો એમ કે લગ્નમાં આગું પાછું કરીએ. હવે બરાબર એન્ડિંગમાં જ તારીખ આપેલી છે એટલે આગું પાછું શું કરવાના, પહેલાં પતાવી દો બરાબર છેલ્લે. એટલે તમને ફૂલ સમય છે. કોઈના લગ્ન કરાવવાના હોય તો કરાવી દો, કોઈના તોડાવવાના હોય તો તોડાવી દો. બધું જ છે. જે પ્રમાણે કરવું હોય તે પ્રમાણે, જે કરવું હોય તે. એન્ડિંગમાં તારીખ છે અને આ જે તારીખ આવે એ જ ગંગા દશારનો સમય છે આપણને. તો 26 મે શુક્રવારથી પ્રવાસ ચાલુ થશે. ટ્રેન પકડવાની મળસ્કે અને બધાએ પ્રવાસ માટે નીકળવાનું છે. તો ટ્રેનમાં જેણે પૈસા ભરવા હોય જલ્દીથી જલ્દી ભરો. 10 જાન્યુઆરીએ બધાની ટિકિટ લેવાઈ જશે. એટલે જેણે બુકિંગ કરાવવું હોય તે પ્રમાણે ફટાફટ કરાવી દે. અને જે પ્લેનમાં આવવા માંગે છે તે 1 અઠવાડિયું હજુ થોભે. જે પણ માહિતી હોય તે એમને આપી દેશું. ટ્રેનનું ભાડું પ્લેન કરતાં ઘણું બધું વધારે હશે. આવવા જવાનું ભાડું બહુ મોંઘું થશે. પણ જે પણ હશે તમને જણાવશું. એ પ્રમાણે નક્કી કરજો. અને જો પછી તમને પ્લેનનું ભાડું મોંઘું લાગે તો તમે ટ્રેનમાં આવવાની સુવિધા છે, તમે ટ્રેનમાં નોંધાઈ શકો છો. પણ ટ્રેનવાળા પહેલાં સજાગ થઈ જાય અને જલ્દીથી જલ્દી તમારા નામ નોંધાવે. 10 તારીખ પછી તમે આવશો, કદાચ તમને ટિકિટ મળે પણ ખરી. પછી કઈ ટ્રેન મળે, વાયા મીડિયા ટ્રેન તમારે પકડવી પડશે. પણ ગ્રુપ બુકિંગ થાય છે. 5-5, 6-6 જણનું એક ડબ્બામાં બુકિંગ થઈ જશે. પણ પછી તમે મોડા પડશો, પછી જે તમને મળે તે ટ્રેનમાં તમારે પહોંચવાનું. તો જલ્દીથી જલ્દી ટ્રેનમાં નામ નોંધાવે. આવતો ગુરુવાર એ આ વર્ષનો છેલ્લો ગુરુવાર છે અને છેલ્લો ગુરુવાર આવતા વર્ષનો 29 તારીખનો ગુરુવાર એ છેલ્લો ગુરુવાર આવે છે. એટલે આવતા ગુરુવારે પણ જેણે આવવું એ આવે. 30 તારીખથી શાકંભરીની શરૂઆત થાય. તો દરેક જણા આ બધી માહિતીઓને ધ્યાનમાં રાખે અને એ પ્રમાણે આગળ વધે. અનુષ્ઠાન પણ આવી ગયું છે. દરેક જણા ફોટા પાડીને જે રીતે લેવું હોય તો અનુષ્ઠાન લઈ જાય અને 30 તારીખથી શરૂઆત કરે. તો હવે ધૂન ગાઈએ અને ત્યાર પછી આરતીમાં
લીલાબેન અને એમનો પરિવાર આરતી માટે આવશે. યેશા સુનીતા મુંબઈ એ પણ આરતી માટે આવશે. जय सानेनाथ बिल्लीमुरा में रहने वाले जय सानेनाथ. जय सानेनाथ बिल्लीमुरा में रहने वाले जय सानेनाथ. जय सानेनाथ भक्तों के दिल में रहते जय सानेनाथ. जय सानेनाथ भक्तों के दिल में रहते जय सानेनाथ. जय छोटे नाथ बिल्लीमुरा में रहने वाले जय छोटे नाथ. जय छोटे नाथ बिल्लीमुरा में रहने वाले जय छोटे नाथ. जय छोटे नाथ भक्तों के दिल में रहते जय छोटे नाथ. जय छोटे नाथ भक्तों के दिल में रहते जय छोटे नाथ. नमः पार्वती पते हर हर महादेव.